Good morning, everyone. So, students, till yesterday we just completed revision of two chapters, chapter 1 and chapter 2, integers and fractions and decimals. Okay, yesterday we also started revision of chapter 5, algebraic expressions. We just did two questions in that: conversion of statement into algebraic expression and conversion of algebraic expression into statement. Okay, in the second question, A and B part you have to do yourself. Third part हमने class work में किया था. Okay, so we will do some more practice questions in chapter 5 for the revision. The third question is identify like terms. Identify like terms. So you have to identify these like terms in these given terms. So the A part is 11a cube b, 15a square bc, 9ab cube. Three terms are given to you and you have to identify which one are like terms among them. So tell me students, which are they? Yes, no like term is there because their variable parts and powers are different. Variable parts देखिए, इसमें a b c थ्री वेरिएबल्स आ रहे हैं, बट इन दोनों में ओनली टू वेरिएबल्स आ रहे हैं a b. ओके, बट जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है वेरिएबल सेम है बट वेरिएबल की पावर सेम नहीं है. यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 3 है. सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय सीइंग a क्यूब b एंड a b क्यूब. जल्दबाजी में बच्चे बस क्यूब क्यूब देखा, a b देखे और लगा देते हैं बोथ आर द लाइक टर्म्स. नो, ये भी आपको देखना है कि पावर 3 अलग अलग वेरिएबल्स की तो नहीं है. यहाँ पे a की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 3 है, तो पावर्स आर नॉट सेम, सो ऑल दे आर अनलाइक terms. Okay, then B part is 2x square y minus 4xy square and xy square. Yes, very good students. Like terms, second and third are like terms because they are having same variable parts and power of variables are also same. x y square, in the first term x की power 2 है, लेकिन बाकी दोनों टर्म्स में x की पावर 1 है. तो फर्स्ट टर्म तो अनलाइक टर्म है, लेकिन सेकंड थर्ड टर्म्स आर like terms. Fine. Then C part. In the C part, which are the like terms? बेटा आप एक टर्म स्किप कर रहे हैं. 9yz, 4zy and 7yz. Yes, these three are like terms. पहले भी मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको करवा चुकी हूँ जिसमें मैंने वेरिएबल्स के ऑर्डर्स चेंज कर दिए थे और आई told you that time also that by changing the order of variables term gets same. टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टर्म सेम रहती है, बस आपको तो वेरिएबल देखने हैं और उनकी पावर्स देखनी है. ऐसा नहीं कि इसमें y z है, इसमें z y है तो अनलाइक टर्म्स है. नो, वेरिएबल्स तो सेम है ना दोनों में, इसमें भी y है, इसमें भी y है, z इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है और पावर्स भी सेम है, तो दे आर लाइक टर्म्स सिंपली. ओके, इन द डी पार्ट, विच आर द लाइक टर्म्स? यस, एक्स वाई जेड एंड -14yzx. अगेन देखिए यहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया हुआ है वेरिएबल्स का. यहाँ x y z लिखा हुआ है एंड इन द सेकंड टर्म इट इज रिटन y z x. नो, कोई इफेक्ट नहीं है इनका. यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेम है, x y z दोनों में ही, और उनकी पावर्स भी सेम है. अगेन बाकी जो दोनों टर्म्स बच गई, क्या वो लाइक टर्म्स हैं? द लेफ्ट टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स और नॉट? Yes, very good. They are like terms because they are having same variable parts. 6yz square and 8yz square. Okay? Yes, they are like terms because they are having same variables with same powers. Okay? In this next question, question number 4, you have to just find constant terms. In chapter 5, I told you what are constant terms. The term in which no variable is present. There is difference between constant एंड कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म में डिफरेंट है. कांस्टेंट तो एक से ज्यादा क्या, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल अगर प्रेजेंट हो तो कांस्टेंट ही रहेगा. फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखिए 3x स्क्वायर और 4x दोनों में ही कांस्टेंट भी प्रेजेंट है और वेरिएबल भी प्रेजेंट है.
3, 4 और 2, तीन कांस्टेंट प्रेजेंट है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. बट इफ आई टॉक अबाउट द कांस्टेंट टर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो टर्म है 2. ठीक है. तो अगर कांस्टेंट आपसे पूछेगा तो आपको सभी टर्म्स के कांस्टेंट बताने हैं, 3, 4 एंड 2. बट इफ ही आस्क फॉर द कांस्टेंट टर्म ओनली, so that term in which no variable is present is called constant term, so 2 will be the constant term here. In the b part, yes, b part में कोई constant term नहीं है क्योंकि तीनों ही terms में variable present है, so none. ठीक है. c part, every student has to give me answer. Yes, 8 is the constant term because it is not having variable in it. What about d part? In the d part, 3 upon 5 is itself a constant term because इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मैंने आपको बताया था कि हर एक कांस्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. सो इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट एंड दैट टर्म इज कांस्टेंट टर्म बिकॉज नो वेरिएबल्स प्रेजेंट हियर. ओके, सो 3 upon 5 will be the constant term in d part. So this was question number 4. Now what is question number 5? In the question number 5 you have to just classify the given algebraic expressions on the basis of terms and degree. Okay, on you have to count how many terms are there and write the name, and then you have to find the degree, and according to degree you have to write its name. Now in the a part, how many terms are there? 3 terms. So what will be its name? Name बताइए. Trinomial. Yes, very good. 3 terms are present here and it will be called trinomial. What will be the degree? 2. Yes, 2 will be the degree and its name will be? What will be its name? Yes, very good Vansh. It will be quadratic. The expression which is having degree 2 is called quadratic polynomial. Fine. So, there are different names on the basis of algebraic expressions. टर्म्स और डिग्री के बेस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट नेम होते हैं. ऐसे नहीं कि आप उन दोनों को मिक्स कर दें, मिक्स नहीं करना है. फाइन. 3 अगर टर्म है तो ऐसा नहीं आप उसको क्यूबिक लिख देंगे, नो. अगर टर्म्स आर 3 देन इट विल बी कॉल्ड ट्राइनोमियल. और ऐसा नहीं कि इसमें भी मिक्स कर दें आप. डिग्री 2 है तो भाई मैंने बोल दिया इट इज बायनोमियल. बायनोमियल वो होता है जिसमें टर्म्स 2 होती हैं. जब डिग्री 2 होती है तो इट विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फाइन. नाउ yes Goransh, I have got it. yes, टर्म इज 1 सो इट विल बी कॉल्ड मोनोमियल. देखिए टर्म्स किससे प्लस माइनस साइन से सेपरेट होती है ना. यहाँ ना तो कोई प्लस साइन है ना ही कोई माइनस साइन है. ठीक है. सो इट इज होल वन टर्म इटसेल्फ. सो if the term is 1 then it is called monomial. The degree, what will be the degree? No, it is not linear. No, wrong answer. इसकी डिग्री 1 कैसे हो गई बेटा? if I want to calculate the power of whole term then I have to just add their powers. जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी पावर्स को ऐड करना पड़ता है. यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों की ही 1 1 1 पावर है. मैंने 1 + 1 + 1 किया तो इट विल बी 3. एंड इफ द डिग्री इज 3 देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक. यस, गुड. नाउ यू गॉट इट. क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही पावर है तो उसको 1 लिख के लीनियर कर देंगे. नो, आंसर गलत हो जाएगा आपका. तीनों ही वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड करना है. यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल था, सिर्फ उसी को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो तीनों की पावर्स को ऐड करना है. ओके. देन इन द सी पार्ट, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? yes, very good Karthik. 4 terms are there, 1 2 3 and 4. and the algebraic expression
which is having 4 terms is called quadrinomial. Okay, then what will be its degree? यस क्यूबिक. डिग्री विल बी 3. आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, उसकी पावर 3 है. सेकंड टर्म में 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, उनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो 2 + 1 ये भी 3 हो जाएगा. यहाँ पे 1 + 2 ये भी 3 हो जाएगा. और फोर्थ टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर 3 है, यानी चारों ही जो टर्म्स है उनकी अलग अलग पावर 3 है. तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 3. और जिसकी डिग्री 3 होती है इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट में बताइए डी पार्ट में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? यस 3 टर्म्स आर देयर, सो इट विल बी कॉल्ड ट्राइनोमियल. ओके, नाउ टेल मी द डिग्री. डिग्री बताइए. 2. यस डिग्री विल बी 2. देखिए फर्स्ट टर्म में 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो इट विल बी 2. सेकेंड टर्म की पावर 1, थर्ड टर्म की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर है 2, सो डिग्री विल बी 2 एंड इट विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक. देन ई पार्ट. In the E part, how many terms are there? 2 terms are there, so it will be called not quadratic, it will be called binomial. क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, यहाँ टर्म्स 2 है तो इट विल बी कॉल्ड बाइनोमियल. द डिग्री विल बी 1. एज यू कैन सी इन दी बोथ टर्म्स ओनली वन वेरिएबल इज देयर और दोनों की पावर 1 है, यानी दोनों ही टर्म्स की अलग अलग पावर 1 है, डिग्री भी 1 हो जाएंगी एंड इट विल बी कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. Okay, now come to the question number 6. You have to simplify the given algebraic expression. मैंने आपको बताया था to simplify the given algebraic expression just find the like terms and write them together then solve them. Which are the like terms in this algebraic expression? First term आप देखिए unlike term है. एक्स वाई तीनों ही टर्म्स रिप्रेजेंट है बट पावर्स डिफरेंट है. यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ वाई की पावर 1 है. यहाँ की एक्स की पावर 1 है, यहाँ वाई की पावर 2 है. दोनों अनलाइक टर्म्स है बट सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो लाइक टर्म है बिकॉज एक्स और वाई दोनों की पावर्स भी सेम है. तो उन दोनों को सॉल्व करना है. सॉल्व किस तरीके से करते हैं लाइक टर्म्स को? लाइक टर्म्स यहाँ पे टुगेदर लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन टुगेदर, एक साथ ही लिखी हुई है ऑलरेडी, तो आपको जस्ट सॉल्व करना है उनको. एक्स वाई स्क्वायर, write the variable part as it is of like terms, then solve their constants. -5 plus 2, both are having different signs so they will get subtracted. 5 minus 2 will be 3, and because the number 5 is bigger and it is having negative sign so it will be -3. Yes, good Anjali. So it will be 9x square y minus 3xy square. Fine. So this was the A part of question number 6. Now move to the B part. B part में आपको देखिए subtraction दिया हुआ है. Two algebraic expressions are given to you. So first of all, if the bracket is given over there, then we have to solve the bracket according to the board mass. Open this bracket. Minus sign is there before the bracket. So it will get multiplied with all these 3 terms within the bracket and their signs will get opposite. उनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे. 12x स्क्वायर पॉजिटिव है तो बाहर आके -12x स्क्वायर हो जाएगा. 3x इज नेगेटिव, इट विल बी +3x. y is positive, it will be -y. Now you have to write like terms together. So 3x square and -12x square are like terms, plus y and minus y they are like terms, and 3x is unlike term. I am writing it at the end as it is. like term को end में लिख दीजिए as it is, unlike term को. Then solve like terms. X square is the variable part. 3 minus 12 will be -9. 3 पॉजिटिव है, 12 नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा. 12 में से 3 माइनस करेंगे इट विल बी 9, एंड बिकॉज नंबर विच इज बिगर दैट इज 12 इज नेगेटिव सो इट विल बी -9. ओके, नाउ यू कैन सी हेयर +y and -y will cancel out with each other as they both are same. like terms है दोनों और दोनों में ही 1 है कांस्टेंट. if no constant it is written there, we assume it as 1 only. So +1 and -1, 1 minus 1 will be 0, so ये पूरे 0 हो जाएंगे. No need to write that. Plus 3x, sorry, it will be plus 3x. Okay, so -9x square plus 3x will be the answer for that.
सी पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ, सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, माइनस साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, देन राइट लाइक टर्म्स टुगेदर जैसे इसमें लिखा है, एंड सॉल्व लाइक टर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर कांस्टेंट्स। ओके, डी पार्ट देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दीज ब्रैकेट्स, फर्स्ट ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, आई एम ओपनिंग इट एज इट इज। सेकेंड ब्रैकेट के आगे देखिए, माइनस साइन इज रिटन बिफोर इट, सो माइनस साइन इन तीनों के साइंस को चेंज कर देगा। 3x क्यूब विल बी पॉजिटिव, प्लस 3 will be minus 3, and plus 7 will be minus 7. So it will be minus 7x square y. Okay, then open the third bracket. Again you can see minus sign is there before the third bracket, so इसे ओपन करते टाइम भी अंदर की जो 4 टर्म्स है उनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। 2x क्यूब माइनस है, इट विल बी प्लस 2x क्यूब, x स्क्वायर y प्लस है, इट विल बी माइनस x स्क्वायर y, 9x माइनस है, इट विल बी plus 9x, and plus 2 will become minus 2. Yes, very good. So now you have to write like terms together. 4x cube, then 3x cube, then 2x cube. These all are like terms. Yes, very good, Karthik. Plus 2x square y minus 7x square y and minus x square y. These three are like terms because they are having same variable part ना, x square y, x square y, x square y. Variables और उनकी powers दोनों ही same है, तो so these three are also like terms. Then minus 5x written over there, minus 5x, इसके लिए बताइए like term कौन सी है? Which one is the like term for minus 5x? Yes, plus 9x. Plus 9x, it is written over here, so it will be like term for that. Now only constants are remaining, write them together. Plus 1, minus 3 and minus 2 are like terms, sorry, constants, so I have written them together. Now we have written all the like terms together, we have to solve them. X cube is the variable part, write it as it is. Yes, Tarvi. 4 plus 3 is 7, 7 plus 2 is 9. Then x square y is the variable term, variable part, write it as it is. Now you have to solve these constants, these are 2 minus 7 minus 1, एक्स स्क्वायर वाई में यहाँ देखिए कोई कॉन्स्ट नहीं है, इट विल बी 1. सो 2 minus 7 minus 1 किस तरीके से सॉल्व करेंगे? minus 7 minus 1 both are having same sign, they will get added. 7 plus 1 will be 8. 7 is bigger number, it is negative, so it will be minus 8. 2 I have written as it is. Again 2 is positive, 8 is negative, both are opposite signs, so they will get subtracted. If we subtract 2 from 8, it will be 6, and because the number which is bigger, it is negative, so minus 6 will be the answer. So what will be the solution for constants? It will be minus 6. So minus 6x square y will be the solution. Then minus 5x plus 9x, x is the variable part, write it as it is. Solve that. Minus 5 plus 9, both are having opposite signs, they will get subtracted. Yes, very good, Drishti. 9 minus 5 will be 4, and because the number which is bigger is positive, it will be plus 4x. Fine. Now इसको solve कीजिए. 3 और 2 both are having same sign, they will get added. 3 plus 2 will be 5. माइनस 5 होगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है ना, माइनस 5. यस, तो प्लस 1 और माइनस 5 का सॉल्यूशन होगा, वेरी गुड गिरीश, इट विल बी माइनस 4. प्लस 1 और माइनस 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. माइनस 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो इट विल बी 4, एंड बिकॉज नंबर विच इज बिगर इज नेगेटिव, सो इट विल बी माइनस 4. बेटा ये माइनस 5 है, माइनस 4 नहीं है, ठीक है. 3 और 2 को आप ऐड करोगे ना तो माइनस 5 आएगा, मैंने गलती से 4 लिख दिया था, बट माइनस 1 माइनस 5, ठीक है. सो आंसर विल बी माइनस 4, आई हैव रिटन इट हेयर, सो दिस विल बी द आंसर फॉर दैट. नाउ ई पार्ट में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस ब्रैकेट, 4x स्क्वायर प्लस 5yz, प्लस एंड माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 11x स्क्वायर. नाउ राइट लाइक टर्म्स टुगेदर, 4x स्क्वायर minus 11x square plus 5yz. These are, मैंने सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया है, प्लस माइनस विल बी माइनस 11x स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख दिया. देन
लाइक टर्म्स फाइंड करके एक साथ लिखनी है। तो 4x² और यहाँ पे -11x² दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, प्लस 5yz अनलाइक टर्म है तो उसको एंड में लिख दिया। अब x² वेरिएबल पार्ट है दोनों का, इसको सॉल्व कीजिए। 4 - 11 विल बी -7, यस वेरी गुड गिरीश, प्लस 5yz, गुड तारवी, गुड महक। सो -7x², what happened Vanshika? So -7x² plus 5yz will be the answer for E part of question number 6. Now move to the question number 7. In question number 7 you have to solve or find the value of the algebraic expression. वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है एक्सरसाइज 5.4 में हमने वैल्यूज फाइंड की थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सॉल्व दैट। ओके, so for that purpose first of all I am opening these terms. So for opening these terms what will they be? 4x means 4 into x minus 5y means 5 into y plus 3. Yes, then put the value 4 into x value is given -2 minus 5 into y की वैल्यू 5 गिवन है आपको प्लस 3 एज इट इज। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5 5 जा 25 प्लस 3। नाउ अकॉर्डिंग टू BODMAS we have to solve addition first. So -8 will be written as it is, -25 plus 3 both are having opposite signs, they will get subtracted. 25 minus 3 will be 22, and because 25 is greater and it is negative, good students, it will be -22. Fine. Then you can see in both of these numbers negative sign is occurring, so both are having same sign, they will get added. 22 plus 8 will be 30, and because number which is bigger is negative, so it will be -30. It is simple. B part you have to do yourself students. Values of variables are same, -2 and 5. A B C इन तीनों पार्ट्स के लिए x और y के सेम वैल्यू गिवन है, आपको डिफरेंट वैल्यूज नहीं दी गई हैं। फाइन। देन सी पार्ट में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दीज टर्म्स। एक्स क्यूब पावर 3 है मीन्स इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स। 3x² y मीन्स 3 into x into y प्लस 3 into x into y plus y cube means y is getting multiplied for 3 times, y into y into y. I have opened all the terms. Now put the values. Yes, good Tarvi. X cube, x की value -2, so -2 3 times multiply होगा, plus 3 into x 2 टाइम multiply हो रहा है तो उसकी वैल्यू जो है -2 वो भी 2 टाइम multiply होगी। y की वैल्यू आपको गिवन है 5, वो यहाँ रखिए, प्लस 3 into x 3 into -2 into y into y means 5 into 5 plus y into y 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यस गुड तारवी। देन solve them, multiply them according to BODMAS. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. As you can see, I told you if more than two integers are getting multiplied with each other, then first of all count the number of negative signs. How many negative signs are there? 1 2 and 3. If the number of negative signs is odd, then put minus sign. 3 नेगेटिव साइंस है ना तो माइनस साइन आएगा, और अगर 2 होते तो प्लस साइन आता। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव साइंस है, 2 is even number, so answer will be plus. Okay, 3 2 is 6, 6 2 is 12. बेटा it will not be -60 दृष्टि, it will be +60. माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे ना। So 3 2 is 6, 6 2 is 12, 12 5 is 60. Fine. Then again you can see plus और माइनस मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो माइनस। 3 2 is 6, 6 5 is 30 and 30 5 is 150. 150 will come here. 5 into 5 into 5 3 times आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 125. 5 5 is 25 and 25 5 is 125. Now solve them. देखिए -8 और 60 के बीच में प्लस साइन है, इनको सॉल्व कीजिए, दोनों के ही साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्शन होगा। 60 में से 8 माइनस करेंगे, इट विल बी 52, एंड बिकॉज 60 इज ग्रेटर इट इज पॉजिटिव, तो इट विल बी +52। इन्हें सॉल्व कर लिया। अब ये देखिए
दोनों के साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 150 में से 125 माइनस करेंगे तो इट विल बी 25। ठीक है, 25 नेगेटिव आएगा बिकॉज नंबर विच इज बिगर इज नेगेटिव। फाइन। सो 52 माइनस 25 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? गिरीश आंसर इज रॉन्ग बेटा, आप ऐड कैसे कर रहे हो उसको? दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे ना। 52 माइनस 25, यस दृष्टि गुड, 27 विल बी द आंसर। फाइन। ऐड नहीं होंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन होगा अकॉर्डिंग टू देयर साइंस। नाउ डी पार्ट इज वेरिएबल्स आर डिफरेंट, वेरिएबल्स की वैल्यू आपको गिवन है। नाउ ओपन द टर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल, a क्यूब मीन्स a into a, b cube will be opened as b into b, ab means a into b, and abc means a into b into c. Now put their values. a की वैल्यू देखो आपको -1 गिवन है, -1 into -1 प्लस b की वैल्यू आपको -3 गिवन है, -3 into -3, देन माइनस a into b, माइनस a into b, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -3 है, प्लस a into b into c, तीनों ही वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे आपस में, -1 into -3 और c की वैल्यू आपको गिवन है 2। ओके, नाउ ओपन द मल्टीप्लाई देम for the multiplication. 1 into 1 will be 1. Again count the negative signs, 3 signs are there negative, so it will be -1. यहाँ पे भी 3 नेगेटिव साइंस है, 1 2 और 3, 3 टाइम्स आ रहा है ना नेगेटिव साइन, ऑड नंबर है तो माइनस साइन आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पे देखिए अगेन 3 नेगेटिव साइंस है तो माइनस ही आएगा, 3 1 जा 3। यहाँ 2 नेगेटिव साइंस है, 2 इवन नंबर होता है तो प्लस आएगा, 3 2 जा 6। नाउ 1 और 27 दोनों के साइन सेम है, सेम साइन होने पे दोनों ऐड हो जाएंगे। 27 plus 1 will be 8. Negative sign will come over here. Now -3 plus 6. So both are having opposite signs. So they will get subtracted. 6 minus 3 will be 3. And because number which is bigger is positive, it will be +3. Again, दोनों के साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्शन होगा। 28 में से 3 माइनस करेंगे, इट विल बी 25, एंड नंबर विच इज बिगर इज नेगेटिव, सो इट विल बी -25. फाइन. So E part you have to do yourself. So with this question students, our revision of chapter 5 is completed now. So we have done revision of all 3 chapters which will come in midterm syllabus. So keep practicing of these questions, do preparation for your exam, and some important instructions is there beta. देखिए objective part you have attempt earlier also, 2 टेस्ट जो हुए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, आपको पता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में रफली आपको सॉल्व करना होता है और आप सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाते हो, ठीक है। बट इन दी सब्जेक्टिव पेपर आपको फुल सॉल्यूशन करके बताना है, सब्जेक्टिव मार्क्स भी ज्यादा क्वेश्चंस के हैं तो ऑब्वियसली फुल सॉल्यूशन करके बताना है। होमवर्क में आप लोग क्या करते हो, सिर्फ आंसर लिख के भेज देते हो, वो आंसर नहीं लिखने। अगर सिर्फ आंसर लिखेंगे आप, जैसे ये फुल सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन जो है ये पूरा सॉल्यूशन किया है, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया और आपने आंसर सिर्फ इसका आंसर में ये सब ना लिखकर सिर्फ 27 लिख दिया, मैं 0 मार्क्स दूंगी। मुझे जब तक फुल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपको फुल सॉल्यूशन करना है, ध्यान रखना इस बात को, फुल सॉल्यूशन करना है तभी मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट द फोटो शुड बी क्लियर, जो फोटो आप उस क्वेश्चन के साथ अटैच करेंगे क्लिक करके अपने आंसर की, वो क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। ब्लर होगी और आपका आंसर सही होगा तो भी मैं उसको चेक नहीं कर पाऊंगी और 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे अगर समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है तो हाउ विल आई चेक इट, और चेक ही नहीं होगा, समझ ही नहीं आएगा तो इट विल गेट 0। ओके, सो फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी, आंसर कहीं से कट नहीं होना चाहिए, इवन कोई साइन या कोई नंबर भी कट नहीं होना चाहिए, डिजिट भी कट नहीं होनी चाहिए, फुल सॉल्यूशन कवर होना चाहिए उस एक फोटो में, ठीक है। जिस क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन किया है उसी क्वेश्चन के आंसर को उस क्वेश्चन के साथ अटैच करना है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव पेपर में, क्वेश्चन नंबर डाल देना,
क्वेश्चन नंबर आप डाल देंगे, और मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, उसका फुल सॉल्यूशन करके फोटो क्लिक की, तो उस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को फर्स्ट क्वेश्चन से ही अटैच करना है। ऐसा नहीं कि सेकंड या थर्ड क्वेश्चन से बाय मिस्टेक आप अटैच कर दें। गलत आंसर गलत क्वेश्चन के साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो सीक्वेंस सेम होना चाहिए। सो दीज वर द इंस्ट्रक्शंस, ध्यान रखना फोटो क्लियर आनी चाहिए। पूरा आंसर सही होते हुए भी कैंसिल हो जाएगा अगर आपने ब्लर फोटो खींच दी या बिल्कुल भी क्लियर नहीं आई। Get it? So these were some instructions for the exam. All the best for your exams. Thank you.